Hi guys, we'll be starting with Lokpal and Lokayuktas. It's a very hot topic, frankly speaking, because पिछले कुछ सालों में क्लैट में भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब रिलेट करते हुए क्वेश्चन आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यूपीएससी का तो हर दूसरे या तीसरे साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक टू स्टडी इन जनरल, जीएस में भी काम आएगा, इन जनरल एथिक्स के पेपर में भी काम आएगा। चलिए, लेट्स ड्रूल इनटू इट। First of all, Article 21 of the UDHR 1948 states everyone has the right to take part in government of this country, directly or through freely chosen representatives. Or through freely chosen representatives. The will of people shall be the basis of the authority of the government. The will of people should be the basis of the authority of the government. Right? Ombudsman होता क्या क्या है जनरली? राइट, उसके बाद मैं लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 पर भी आऊंगा। पर ओम्बड्समैन का काम क्या है, फीचर्स क्या होते हैं, हम ये देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है? इट इज हैविंग फंक्शनल ऑटोनॉमी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इट इज हैविंग अ नॉन पार्टिसन नेचर, it is normatively universalistic, it is citizen centric but not anti admin, it is popularly accessible and visible. The presence of adequate machinery for performance of functions is there with the lokayukta. Second, functions क्या क्या है इसके? To protect freedoms of citizens from admin excesses, to investigate complaints of corruption and maladmin and suggest remedial measures, to make the bureaucracy more humane and identifying systemic shortcomings and securing general improvements, to make popular alienation from the government, to prevent abuse by acting as bureaucratic watchdog. देखिए, हर एक इंसान का, हर एक गवर्नमेंट एंटिटी का एक वॉचडॉग होता है। जैसे सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे ही एडमिन के लोगों के लिए भी कुछ होता है, ब्यूरोक्रेसी के लिए भी एक वॉचडॉग होना चाहिए, जिसको हम ओम्बड्समैन बोलते हैं। टू विंडिकेट हॉनेस्ट पब्लिक सर्वेंट्स, राइट। सम फॉर्म्स ऑफ ओम्बड्समैन इंडिया क्या क्या है? सबसे पहले तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी of one or more members by the appropriate government to make, सेंटर एंड स्टेट किसी भी गवर्नमेंट का हो सकता है, टू मेक एन इंक्वायरी इनटू अ डेफिनेट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विद इन अ टाइम पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड। लिमिटेशन पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है। लिमिटेशन पीरियड इज नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है। देन सीवीसी है किसके अंदर? सीवीसी एक्ट के अंदर, विजिलेंस का जो प्रोस्पेक्ट है पूरा। इट इज originally recommended by Santanam committee. Jurisdiction of CVC is co-extensive existensive with the central government. Government servants employed in various ministries and departments of the central government and union territories and employees of PSUs and nationalized banks are included in it. Right? These are a few things. Then we have the concept of Lokpal. It was created on the basis of recommendation of first ARC, which was eventually the statutory basis of what? The Lokpal and Lokayuktas Act of 2013. Right? The Lokpal and Lokayukta Act provided for what? It provided for the establishment of Lokpal, for the union and Lokayukta, as well as they perform the function of an ombudsman. Right? The functions of an ombudsman is written here, as I explained before. Right? The concept of ombudsman was first proposed by the Law Minister Ashok Kumar Sen in early 1960s. The term Lokpal and Lokayukta together was coined by L.M. Singhvi. ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना था। अब लोकपाल के क्वालिफिकेशन क्या होते हैं ये भी देखते हैं। इट कैन बी अ फॉर्मर सीजीआई एससी जज और एन एमिनेंट पर्सन विद इम्पेकेबल इंटेग्रिटी एंड आउटस्टैंडिंग एबिलिटी। मेंबर्स कौन कौन है? फॉर्मर एससी जज कैन बी वन, अ नॉन जुडिशियल मेंबर कैन ऑल्सो बी वन, जो मैंने आपको बताया। टेन्योर क्या है? इधर 5 years और 70 years ऑफ एज।
राइट। सैलरी, चेयरमैन इज इक्वल टू सीजीआई एंड मेंबर्स इज इक्वल टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है? पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन, स्पीकर भी है, सीजीआई एक सुप्रीम कोर्ट का जज है, या एक एमिनेंट जुरिस्ट जो है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट अंडर द स्टेट, नॉट एलिजिबल फॉर एन अपॉइंटमेंट अंडर स्टेट आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट इसके बाद नहीं हो सकती 70 साल या 5 साल के जॉब में। अगर आप लोकपाल या लोकायुक्ता एक्ट में के अंतर्गत आपने अगर काम किया तो स्टेट के अंदर अपॉइंटमेंट आपकी इसके बाद नहीं हो सकती है। प्राइवेट हो सकती है लेकिन स्टेट के अंदर नहीं हो सकती है। रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट कमिटी। रिमूवल ऐसे होगा। द एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज एंड पेंशन इज चार्ज ऑन द सीएफआई। सीएफआई में चार्ज होगा, इसका ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट। इट इज चार्ज ऑन दी व्हाट? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। So what are the divisions of under created another act? First is what? The inquiry wing. Inquiry wing is headed by the director of inquiry. Its function is to conduct preliminary inquiry into an offence alleged to have been committed under the PCA. PCA मैंने आपको पढ़ा दिया है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। प्लीज वो वीडियो देखिए, मैं उसकी लिंक भी अटैच कर दूंगा। राइट। या इसके बाद जो भी वीडियो खत्म होगा ना, तो उसमें वो एंड में जो बॉक्सेस आते हैं उसमें भी डालने की ट्राई करूंगा। Next is the prosecution wing. It is headed by the director of prosecution for the purpose of prosecution of public servants. Jurisdiction में क्या कौन कौन है? It covers the prime minister, all union ministers, except for the matters under article 105. Article 105 में क्या है? कमेंट में लिखिए। Group AD officers and any other person involved in the act of abetting bribe or giving or taking. Right. Next, public servants who are trusted of NGOs receiving government funds more than 1 crore rupees or foreign funding of more than INR 10 lakh पर ईयर ऑल्सो कवर्ड। ठीक है, ये दो चीजें कवर्ड होंगी, इसका ध्यान रखना है ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत। पावर क्या क्या है? सुपर इंटेंडेंस एंड डायरेक्शन ओवर एनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इंक्लूडिंग द सीबीआई फॉर केसेस रिफर्ड टू देम। पहली चीज। सेकंड, पावर टू ऑथोराइज सीबीआई टू कंडक्ट सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्वायरी विंग ऑफ लोकपाल इज वेस्टेड विद पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। Powers of confiscation of assets, proceeds, receipts, and benefits arisen or procured by means of corruption. Second last, Lokpal has powers to recommend transfer or suspension of a public servant eventually. The power to give directions to prevent destruction of records is also given under this act. What is the procedure and how it is governed? Right? इसको देखते हैं अब। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन रिसीट ऑफ द कंप्लेंट, लोकपाल डिटरमाइंस वेदर और नॉट, मतलब चलना है या नहीं आगे। ठीक है। Once you decide to do the preliminary inquiry, can be either by the inquiry wing or the CBI, right? तो इसका ध्यान रखना है, दो चीजें इन्वॉल्व है। इज टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज। 90 डेज के अंतर्गत उसे कंप्लीट करना है। इफ अ prima facie case is made out the basis on the basis of preliminary inquiry, the Lokpal will order an investigation by CBI or by any other central agency to be it is to be completed in 6 months. If a case is built through investigation, the Lokpal will direct its prosecutional wing to prosecute the charged individual in special courts under the POCA। ठीक है, 1988 पीसीए जो भी है। आप इसको अगेन, इसका वीडियो आप जरूर देखिएगा, मैं अटैच कर दूंगा लिंक, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द एक्ट स्पेसिफाइज दैट एनी इंक्वायरी अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी हेल्ड इन कैमरा एंड रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ 2/3 ऑफ द फुल बेंच ऑफ द लोकपाल। इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार पीएम अगर इन्वॉल्व हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि नेशनल अप्रोर होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें एक बेटर स्ट्रिंजेंट मैकेनिज्म चाहिए अगर हमें इंक्वायरी क्रिएट करनी है अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। लोकपाल हैज द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट फॉर समनिंग विटनेसेस और इशूइंग ऑर्डर्स फॉर सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। द लिमिटेशन पीरियड इज व्हाट? 7 years. The central government shall constitute special courts on the recommendation of Lokpal to hear and decide cases arising out of the PCA 1988 or under the Lokpal Act. The courts
are required to complete trials within 1 year of filing. Limitation period यहाँ दिया गया है. There is this limitation period which is given here. Yeah. Next. No proceeds or decisions of the Lokpal shall be challenged in any court. However, this will not bar a jurisdiction under Article 32 and 226. The critical remarks are what? Needs have its own investigative wing to reduce द रिलायंस ऑन गवर्नमेंट एजेंसी सच एज सीबीआई. या देखिए, अगर सीबीआई ही इन्वॉल्व है तो वो तो गवर्नमेंट की एजेंसी है ना, राइट? तो अगर तुम गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हुए एक चीज कर रहे हो तो उसमें गवर्नमेंट एजेंसी क्यों इन्वॉल्व है? पहला प्रश्न ये हो गया. सेकंड, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ लोकपाल हैज नॉट बीन सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर सेवरल ईयर्स. बहुत साल हो गए हैं. देर इज नो प्रोटेक्शन फॉर विसल ब्लोअर्स. विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट का भी प्रोस्पेक्ट आता है इसके सामने. लेकिन इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट विसल ब्लोअर्स, ताकि अपनी खामियां पता चले. जब तक हमें हमारी खामियां नहीं पता लगेगी तब तक हम बढ़ेंगे कैसे, राइट? नेक्स्ट, जुडिशरी इज नॉट विद इन द परव्यू ऑफ लोकपाल jurisdiction. जुडिशरी क्यों नहीं इन्वॉल्व है भाई? चेक्स एंड बैलेंसेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. देर आर नो प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजन चार्टर. सिटीजन चार्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडियन गवर्नेंस. ठीक है, वो क्यों नहीं इन्वॉल्व है? देन, लैक ऑफ प्रोविजन ऑफ अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोकपाल. अपील क्यों नहीं है? क्या पता एक मैलिफाइड अपील हो, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग इज इनफेलिएबल. Lokpal cannot conduct inquiry against itself. Very important to note that. The power to inquire into the PM's actions is excluded from corruption related to international affairs, external and internal security, public order, atomic agency and space. देखिए, एसेंशियल मिनिस्ट्रीज है, एसेंशियल मैटर्स है, इन सब चीजों में इंक्वायरी क्यों नहीं इन्वॉल्व है? दैट इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी नोटेड अपॉन. अब हम आते हैं लोकायुक्तास पर. There are no uniform provisions for establishment of a lokayukta. There are no provisions regarding its composition, etc. in the Lokpal and Lokayukta Act. Across several states, seats have been deliberately left vacant or it has been made defunct. अगर वर्किंग ही नहीं है अच्छे. Dilution of powers. Several state of amendments to dilute the powers of लोकायुक्ता. अगर आप सरकार को क्वेश्चन ही नहीं करने दे रहे हैं तो सरकार की खामियां देश के सामने नहीं आएंगी और देश का नागरिक वोट नहीं कर पाएगा ढंग से. यही काम था लोकायुक्ता का जो अब नहीं हो पा रहा है. वही मैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात कर रहा था, वो यही आ गई. गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है. There are some miscellaneous things as well. The accounts of Lokpal are audited by the CAG, Auditor General, right? Each member or officer of the Lokpal is required to declare his assets. Chairperson, members, officer, and other employees are deemed to be what? Public servants. लोकायुक्ता कौन कौन है? They are established under Lokpal and Lokayukta Act 2013. They are to inquire into the allegations of corruptions against public functionaries. Very important to note that. It was recommended by the first as well as the second ARCs. Lokpal and Lokayukta Act contains mandate for setting up of institution of Lokayukta by the legislature within 365 days, जो ढंग से नहीं हो पाया अभी तक, जो मैंने आपको बताया. And states have been given freedom to decide on the broad counters to which it has to be established. And Maharashtra was the first state to establish the office. Organizational structure क्या क्या है वो भी देख लेते हैं. It does not follow uniform pattern. No uniform pattern. लोकायुक्त और उप लोकायुक्ता भी क्रिएट हुआ गया है. अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है? बाय गवर्नर, जनरली इन कंसल्टेशन विद दिस चीफ जस्टिस ऑफ एचसी एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन. क्वालिफिकेशन क्या क्या है? इट इज 565. सेकेंड टर्म अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है. देर इज यूनिफॉर्मिटी नहीं है बिल्कुल जुरिडिक्शन. मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में सीएम इंक्लूडेड है. महाराष्ट्र, यूपी, बिहार में नहीं है. बताइए. Most states include only sitting ministers and civil servants, and Maharashtra includes retired one as well. MLAs are included in some states but not in others. MLA भी included नहीं है. बताइए. Authorities of corporations, companies
आर इंक्लूडेड इन मोस्ट थिंग्स। इनको तो, क्योंकि सरकार के टैक्सेशन कहाँ से आएंगे? अथॉरिटीज से ही आएंगी, कॉर्पोरेशन से ही आएंगी। पावर्स क्या क्या है? जो सेम थी ऑलमोस्ट। सुपरिटेंडेंस ओवर मैटर रिफर टू प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। सिविल कोर्ट की पावर्स है। सीजर और अटैचमेंट ऑफ एसेट्स भी कर सकते हैं। पावर टू रिकमेंड ट्रांसफर और सस्पेंशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। Power to take assistance of state agencies in conducting inquiries. In some states, lokayuktas have powers to start investigations suo motu. In some cases, they can investigate into the matters of both corruption and maladmin, whereas only others in corruption matters. ठीक है? It presents an annual report to the governor, which is to be laid before the state legislature. कुछ कुछ क्रिटिकल रिमार्क्स क्या है जो मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पे भी there are genuine complaints which are rejected for want of jurisdiction, anonymity, and triviality. Lokaayuktas do not get sufficient information from state departments and agencies. There is a need to have its own investigative and prosecutorial wings. There is no protection to whistleblowers, जो मैंने आपको बताया। सिटीजन चार्टर के नहीं है, अपील नहीं है लोकायुक्ता के डिसीजन की, यूनिफॉर्म मैंडेट नहीं है। ये सारी बेसिक चीजें हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप ये बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताई है इससे पहले वो आप लिख देंगे तो आपके नंबर आएंगे इस पर्टिकुलर चीज में, लोकायुक्ता देन लोकपाल एक्ट में। So this was it for admin law. I hope you enjoyed it. I hope you liked it. And don't forget to like, share, and subscribe. Have a great day ahead. Bye.